Good morning, students. Chapter number 7 we have started. The chapter number 6 is already over, that is the populations. Now the chapter number 7 name is unemployment in India. Chapter number 7 unemployment in India. Okay, this is very important chapters to you students because in today's world you are teaching in the 12th standard. Afterwards you are to completed graduation. So many students now completed the graduation. Okay, but what the futures? Okay, because there is no job in all over the world. This situation is created by unemployment situations. Okay, because so many students are passing now because our government policy for this epidemic period, they are decided to passing out all the students. Okay, so if the generation is only passing, okay, so how much companies are given job for that generations? Okay, because country like India, there is no on firms available for all over the students. Okay, right now. So if you are thinking that I am a very good student, I have to achieve excellent mark, I have to achieve all professional skill, that is not important because jobs are not available. Okay, so that is the created problems of unemployment situations. Okay, because in tomorrow's world, I am not saying that today's world, in future there is so many criticize came in your life because some jobs are not available. And if you are ready to take a business opportunity, or you are ready to create your own business, so is it very good? Okay, but it's also not given assurance to you that they are give survive in this kind of situations. Okay, so what do you have to students? You have to do compulsory the skill knowledge. Okay, improve your quality, improve your skill, whatever the talent in your own, you have to choose that talent. Okay, and try to job on that particular talents. Okay, so now we are watching unemployment in India. Introductions. India is developing economy and the fastest growing economy in the world. The problems of unemployment is considered to the biggest challenge of to development of India. Okay, you knows that in all over the world, India is one of the best competitor for each and every global economy. India is doing very fast developing as compared to other country. Okay, it is always increasing by increasing, their economy is increasing, their GDP rate is increasing, but some kind of problems are facing by India because here population are too more. So therefore India is facing the problems of unemployment, and it is one of the biggest challenge all over the country. Okay, because if you got job, you are not earning more than 10,000 or 20,000, and in this one you are not completed your fundamental needs. So what is the meaning of that kind of jobs? Okay, so you, if you are watching figure number 7.1, okay, it is given here. This is the unemployment situation and this is the employment situations. Okay, is this figure, just concentrate the figures. You are looking that so many workers who are the skilled labor, they got a job. Okay, but who are only educated and who are only came from outside from colleges or school, they are just like unemployed. Okay, so why this kind of situation is happen, now we are watching. Okay, so figure number 7.1 you have to watch, and this one is given idea to you about the problems of unemployment in India. Okay, so unemployment lead the wastage of human resources. Okay, अनएम्प्लॉयमेंट इज लीड्स द वेस्टेज ऑफ ह्यूमन रिसोर्सेज, मीन्स इंसान जो है उसको एक वेस्टेज मटेरियल अनएम्प्लॉयमेंट के कारण बनना पड़ता है, क्योंकि अगर मशीनरीज़ है तो लोग मशीनरीज़ का ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो ह्यूमन रिसोर्सेज एक टाइप से वेस्टेज होने वाली है. ओके, लॉन्ग टर्म अनएम्प्लॉयमेंट रिजल्ट इन मास पॉवर्टी एंड स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट.
अगर इसी तरह से अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ता रहा, यही एपिडेमिक सिचुएशन रही और 2 साल 1 साल, तो यहाँ से बहुत सारे बच्चे ग्रेजुएट होंगे, बहुत सारे बच्चे पढ़ के बाहर निकलेंगे, लेकिन उनके लिए जॉब अवेलेबल नहीं होगा। तो इसके कारण 2 चीज़ें होगी, पहला तो है मास पॉवर्टी एक्सट्रीम बढ़ेगी, और दूसरा है स्लो इकोनॉमिक डेवलपमेंट। उस पर्सन्स की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट स्लो होगी, उसी तरह हिसाब से कंट्री की भी इकोनॉमिक डेवलपमेंट लेस होगी। मोस्टली यंग पीपल फेस द प्रॉब्लम्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। आपको तो ये भी मालूम है कि जो यंग जनरेशन है उनको ही जॉब का प्रॉब्लम या अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम होता है, क्योंकि एक बार वो ग्रेजुएट होके बाहर निकल गए तो उनका पहला काम होता है उनको जॉब फाइंड आउट करना, आफ्टरवर्ड सर्वाइव ऑन दैट जॉब, सर्वाइव के बाद कंप्लीट द फंडामेंटल नीड्स के बाद फिर लग्जरियस नीड्स। सो इस कारण सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम यंग जनरेशन को है। ओके, ओल्ड एज को प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि उनका सब कुछ ख़त्म हो चुका है, दे आर लिविंग ऑन पेंशन। चाइल्ड 1 to 16 के ईयर्स तक उनको प्रॉब्लम नहीं क्योंकि वो अब तक एजुकेटेड या पढ़ाई कर रहे हैं। तो मोस्टली प्रॉब्लम यंग जनरेशन को है जो अब भी ग्रेजुएट होके बाहर निकलेंगे। सो उनके लिए अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला है। यंग पीपल आर मेजर ह्यूमन रिसोर्सेज। अभी आप ये भी मानोगे कि यंग जनरेशन जो है यही एक ह्यूमन रिसोर्सेज है, की एजेंट फॉर सोशल चेंज एंड ड्राइविंग फोर्स ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस। यही जो यंग जनरेशन होती है, यही इनके ही अंदर सोशल चेंजेस करने की ताकत होती है, सोसाइटी को चेंज करने की ताकत होती है। उसी के साथ हम ये भी मान सकते हैं कि कंट्री की इकोनॉमिक डेवलपमेंट इन यंग जनरेशन के ऊपर डिपेंड है, बिकॉज दे आर ओनली थिंकिंग अबाउट द जॉब, दे आर नॉट थिंकिंग अबाउट द करप्शन और अदर थिंग्स। सो देयरफॉर सोसाइटी में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस इन्हीं लोगों का है, यंग जनरेशन का। और उसी के साथ टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस भी यही करते हैं, इनके दिमाग के अंदर बहुत सारी सॉल्यूशंस आते हैं, इनके दिमाग के अंदर बहुत सारे इनोवेशंस आते हैं। तो यही जो जनरेशन है, यही जनरेशन यंग जनरेशन जो होती है, ये एक सबसे इम्पॉर्टेंट रिसोर्सेस है। ओके, इंडिया हैज़ कंसिडरेबल यंग जनरेशन, हेंस अनएम्प्लॉयमेंट अमॉन्ग द यूथ इज़ मोस्ट क्रिटिकल चैलेंज ऑफ 21st सेंचुरी। अभी इंडिया के बारे में देखोगे तो इंडिया में यंग जनरेशन इतनी वास्ट है या ज़्यादा है कि यहाँ पे इसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ कम है, जॉब कम है, और ये इंडिया के सामने 21 सेंचुरी में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। यही बच्चे अगर 90 से पहले बॉर्न होते तो ये प्रॉब्लम उनको फेस नहीं करना पड़ता, क्योंकि पॉपुलेशन लेस थी, एजुकेशन कम लगता था, जॉब अवेलेबल थे। लेकिन 21 सेंचुरी में एजुकेशन बहुत ज़्यादा है लेकिन फर्म्स कम है, जॉब कम अवेलेबल है। सो वो लोग अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। ओके, देयर इज़ इम्बैलेंस बिटवीन अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ एंड इंक्रीज पॉपुलेशन। अभी आपको और एक प्रॉब्लम दिखाई देगा कि यहाँ पे इम्बैलेंस है, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ और इंक्रीज पॉपुलेशन तो दिन ब दिन बढ़ रही है, लेकिन जॉब अपॉर्चुनिटीज़ जो है वो दिन ब दिन कम होती जा रही है। फर्म्स नहीं है, इंडस्ट्रीज़ नहीं है, खेती तो करने को लोग तैयार नहीं है, एग्रीकल्चर सेक्टर्स नहीं है, पॉपुलेशन बढ़ने के कारण एग्रीकल्चर सेक्टर्स पे डिपेंड नहीं रह सकते। तो ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स है जिसकी वजह से इम्बैलेंस हो रहा है, पॉपुलेशन तो बढ़ रही है लेकिन जॉब कम हो रहा है। दिस हैज़ द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट, और जिसके कारण अनएम्प्लॉयमेंट की सिचुएशन बहुत ज़्यादा बढ़ रही है। So generally unemployed people are involved unproductive works like gambling, in drugs, in anti-social and anti-national activities. अभी अगर जॉब अवेलेबल नहीं होगा तो क्या करेंगे लोग या यंग जनरेशन, वो अनप्रोडक्टिव एक्टिविटीज़ में शामिल होगी, जैसे वो ड्रग्स लेगी, लिकर या ड्रिंकिंग करने में ज़्यादा ये होगी। कई बार वो गैम्बलिंग करेंगे, चोरी करेंगे, ओके, स्मगलिंग कर सकते हैं, ऐसी एक्टिविटीज़ में शामिल हो सकते हैं जो एंटी सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि उनका गुस्सा वो जॉब पे नहीं है या उनको गुस्सा इस पे नहीं है, लेकिन उनका गुस्सा सोसाइटी पे कि वो सोसाइटी उनके जॉब की रिक्वायरमेंट कम नहीं कर सकती। कई बार ये लोग एंटी नेशनल भी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, मतलब टेररिस्ट भी हो सकते हैं, पैसों के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। यंग जनरेशन को आप यंग जनरेशन के माइंड को कंसिडर नहीं कर सकते, वो पैसों के लिए कुछ भी एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं, ओके, क्योंकि पैसा चाहिए। सो ये प्रॉब्लम्स लार्ज स्केल अनएम्प्लॉयमेंट की वजह से क्रिएट होने वाला है।
क्योंकि अगर जॉब नहीं रहेगा, अनएम्प्लॉयमेंट रहेगी, तो वो लोग घर में उनको इरिटेट किया जाएगा, उनको एक्सप्लॉट किया जाएगा। अभी वो एक्सप्लॉट होने लगेंगे तो वो बाहर जाके कोई भी काम करने को तैयार रहेंगे। ओके, they have to kill anyone, they have to smuggling, they have to gambling, they have to thefting, any kind of work they are doing. Okay, and also they are doing anti social activities. ओके, सोसाइटी को बर्बाद करने के लिए भी वो कुछ कर सकते हैं, क्योंकि वो सोसाइटी उनकी रिक्वायरमेंट कम नहीं कर रही है, या एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ भी कर सकते हैं। ओके, एंटी नेशनल एक्टिविटीज़ यानी आपको पता चलेगा, एंटी नेशनल का मतलब है कि वो कंट्री के खिलाफ भी वो जा सकते हैं। ओके, क्योंकि उनको जहाँ से पैसा मिलेगा वहाँ पे वो लोग जाने को तैयार हो जाएंगे। ओके, सो दैट इज़ द मेन प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।